Hello everyone, welcome you all in advanced surveying subject. Today we will going to start our chapter 5th. The name of chapter is advanced surveying equipments and the weightage for this chapter is 14 marks. So content cover in this chapter is basically the advanced surveying equipment used in survey. Okay, so in this chapter we will study about three types of advanced surveying equipment. One is EDM, that is called as electronic distance meter. Second one is a theodolite. All of you know the theodolite, but in this chapter we will discuss about the electronic digital theodolite and 1 second micro optic theodolite, and third one is a total station. So the first point about the EDM is the principle of electronic distance meter, its component parts and their functions and uses of EDM. Okay. The second point is the construction and the uses of 1 second micro optic theodolite, electronic digital theodolite, features of electronic digital theodolite. And the third one is a total station, the construction and the uses of total stations, then temporary adjustment of total station, uses of functions keys. Okay, and the last one is a how to take the measurement with the help of theodolite, that is horizontal angle, vertical angle, distances, and for coordinates using total station, traversing profile, survey and contouring with total station. So let us start with the EDM, that is electronic distance meter, the introduction for EDM. Okay. Electronic distance measurement, that is EDM, is a method of determining the length between 2 points using electromagnetic waves. Okay, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करके दो स्टेशन पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर हम लोग करते हैं. देन EDM instruments are highly reliable and convenient pieces of surveying equipment and can be used to measure distances up to 100 km. But the distance measurement is depend upon the type of EDM or the wave generated from the EDM. Okay. Then third point, the direct measurement of distance using tape is difficult. Okay, when the terrain is rough or the site is congested. In such a cases, the electronic distance meter is used. Okay, but when this method is avoided, when the large amount of inconsistency in the terrain or the large obstruction exists, this method is avoided. Okay, but indirect measurement of distance using optical method is not suitable for high accuracy measurement. Okay. Thus, to obtain an high accuracy measurement in difficult terrain for the long distances, measurements are taken electronically. Then, the electronic measurement of a distance is being carried out either by electro-optical light wave, which is device coupled with reflector. Then this is also called as a laser range pole, or by the pair of electromagnetic microwave instrument. Okay. This EDMI, that is electronic distance measuring instrument, is integrated यूनिट है जिसे शॉर्टकट में EDMI बोलते हैं, which is consist of an electrowave generator, oscillator, modulator, transmitter and the receiver, etc. Okay, this is the introduction of EDM. Okay, now let us start with the principle of EDM. What is the main function? What is the main principle of this EDM? The main principle of EDM is electronic waves. Okay, electronic waves are generated and transmitted by difference between 2 points, and that is distance can be measured. Okay,
though suppose it is required to measure the distance P and Q. The EDM is set up over station P and a wave is transmitted from the transmitter. At the other end, Q reflects the wave and receives back at the transmitter. The difference between transmitted waves and the reflected waves is converted into distance. Okay. भी ये डायग्राम में हम लोग को पता चलेगा, यहाँ पे ट्रांसमीटर होगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर होगा। ट्रांसमीटर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स क्या करेगा, जनरेट करेगा जो फॉरवर्ड पाथ है। देन यहाँ पे रिसीव, जो रिफ्लेक्टर है रिसीव करेगा जो ट्रांसमीटर से वेव्स आए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिसीव करके अगेन वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा कहाँ पे, ट्रांसमीटर के पास। तो ये जो दोनों का डिस्टेंस है वो क्या होगा, यहाँ पे जो डिजिटल डिस्प्ले होगा यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली कैलकुलेट होगा। ये मेन फंक्शन है ईडीएम का। अभी डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है, मेन इसका जो हम लोग नॉर्मली डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, डेट इज़ वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन 2। तो बेसिकली वही जो फॉर्मूला है वही फंक्शंस पे हम लोग क्या करते हैं, ये ईडीएम वर्क करता है। ओके। अभी हम लोग को टैकोमीटर में भी डिस्टेंस मिलते थे, बट टैकोमीटर में हम लोग को जो डिस्टेंस मिलते हैं इसी, तो हम लोग को वहाँ पे एक देखो आई की वैल्यूज़, लैम्बडा एफ की वैल्यूज़, फोकल लेंथ क्या है, ओके, वो सब हम लोग को क्या करना पड़ता था, याद रखना पड़ता था। और हम लोग को जो एफ प्लस डी का जो हम लोग ने डेरिवेशंस किए हैं वो सब हम लोग को याद रखने पड़ते थे। बट यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग को डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं ईडीएम में। बट टैकोमीटर में सम जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है वो याद रखने पड़ते हैं। देन हम लोग को फॉर्मूलेज याद रखने पड़ते हैं एंड देन हम लोग वो सम पर्टिकुलर वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट करके हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। बट ईडीएम कैसे, डायरेक्टली हम लोग को वैल्यू देता है। ओके, नाउ देखते हैं component parts of the EDM. The following are the general component parts of EDM. One is a control panel, second one is a tangent screw, horizontal and vertical, optical trumpet, telescope and leveling head. Okay, अभी इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर, ये जो आपके बुक में ये वाला डायग्राम दिया है वो वर्क करता है लेज़र पे, बट ये जो कंपोनेंट पार्ट्स है वो ये वाले इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट के हैं। ओके, सो फंक्शंस देखते हैं। अभी ये आपके बुक में नहीं है बट हम लोग शॉर्टकट में इसके कंपोनेंट पार्ट्स देखते हैं, वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट कंट्रोल पैनल क्या करता है, कंट्रोल पैनल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मोड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड डिस्टेंस। कंट्रोल पैनल क्या करेगा कि डिफरेंट मोड हम लोग जैसे जो रिक्वायर है उस हिसाब से एंगल और डिस्टेंसेस फाइंड आउट करके देता है। Then for the different types, different modes are used to get the actual precise measure. काम क्या है कंट्रोल पैनल का, डिस्टेंस एंड एंगल मेजरमेंट। देन टेंजेंट स्क्रू जैसे हम लोग ने थेडोलाइट में देखे हैं कि टेंजेंट स्क्रू का काम क्या है, सिमिलरली हम लोग का यहाँ पे भी सेम ही जो फंक्शन है। द मेजरमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल is done by aiming this tangent screw. The horizontal tangent screw is used for horizontal angle and vertical tangent screw is used for vertical angle. जब हम एंगल मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल एंड वर्टिकल एंगल, तो जस्ट फिक्स अप या मूव करने के लिए, ओके, एग्जैक्टली बाइसेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट स्क्रू का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज अ लेवलिंग हेड. It is a basement of the EDM and used to make the LED display horizontal. जो ऊपर का पूरा पार्ट है, जो लेवलिंग, जो फुट स्क्रूज मतलब 3 प्लेट्स कनेक्टेड होते हैं, अगर ये डायग्राम में मैं दिखा सकती हूँ तो ये जो पूरा पार्ट है इसके बोलते हैं लेवलिंग हेड. ओके, नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल प्लम्बमेट. It is very important to set an instrument over a station point for accurate distance measurement. It is called as a centering. Okay, अभी ऑप्टिकल प्लम्बमेट मीन्स क्या, वहाँ पे एक प्रिज्म अटैच्ड होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे अभी डायग्राम में आपको दिखे, हाँ यहाँ पे ये देखो, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं,
देख सकते हैं नीचे जो सेंटर पॉइंट है, तो ये आईपीस होगा छोटा सा, तो उसमें एक प्रिज्म अटैच रहेगा। सो प्रिज्म हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं प्रिज्म थ्रू, और क्या करते हैं, सेंटरिंग करते हैं। तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटरिंग। ऑप्टिकल प्लम्पेट इज यूज टू चेक द एग्जैक्ट सेंटरिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ओके, then all of you know the function of telescope. It is required to bisect the object for any measurement by the surveyor, and the surveyor aims the target the station for the measurement for aiming the telescope. All of you know the function of telescope. The same function EDM में भी वही है. Okay. Now the next one is a uses of EDM. Okay. भी यूजेस हम लोग ने देखे. फर्स्ट वन इज टू मेजर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, टू मेजर द वर्टिकल डिस्टेंस, देन मेजरमेंट ऑफ रफ एंड एक्यूरेट मोड ऑल्सो, देन मेजरमेंट ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट कोऑर्डिनेट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, देन मेजरमेंट ऑफ इंक्लाइन डिस्टेंस ऑन स्लोप, एंड द मेजरमेंट अलॉन्ग विद द एटमॉस्फेरिक, और जहाँ पे जैसे कि मैग्नेटिक मतलब कंपास सर्वे में लोकल अट्रैक्शंस होते हैं, तो इसकी वजह से एरर आते हैं, बट यहाँ पे कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक जो एरर्स आते हैं वो ईडीएम में होते नहीं हैं. ओके, बी नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ईडीएम. ओके, there are so many types of EDM, but in your textbook only given the 6 type. One is a distometer, second one is a geodesimeter, then third one is a short range EDM है, medium range EDM है, लॉन्ग रेंज EDMI, और लास्ट वन इज़ अ टोटल स्टेशन. ओके, बी जो शॉर्ट रेंज EDMI है, ओके, शॉर्ट रेंज ये ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ ऑपरेशन है, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग रेंज. ओके, अभी जो शॉर्ट रेंज EDMI है, ओके, शॉर्ट रेंज EDMI में जो वेव्स जनरेट होते हैं वो 3 × 10⁻14 हर्ट्स जो है वो वेव्स पास होते हैं. तो डिस्टेंस जो है शॉर्ट रेंज में जो कैलकुलेट होता है वो 500 to 800 मीटर ओनली, इतना शॉर्ट रेंज में होगा. देन मीडियम रेंज है, मीडियम रेंज में कितना होता है 5 × 10⁻14 हर्ट्स, और उसको ही एक्चुअली जो मीडियम है उसको ही जियोडेसीमीटर भी बोलते हैं. ओके, एंड लॉन्ग रेंज जो है, लॉन्ग रेंज में 3 to 30 गीगाहर्ट्ज होते हैं, उसे टेलीलोमीटर ऐसे भी बोलते हैं. ओके, जो लॉन्ग रेंज जो 100 किलोमीटर्स है वो लॉन्ग रेंज है, जो माइक्रोवेव बोलते हैं उसे मीडिया. ओके, तो ये सब जो है अभी ये उतना आपको जस्ट अगर टाइप्स आते हैं तो जस्ट लिस्ट आउट करना है. ओके, उसका एक्सप्लेनेशन इतना कुछ आपको पूछा नहीं गया है. सो दिस इज ऑल अबाउट द EDMI. The next instrument is theodolite. So that is 1 second micro optic theodolite. Okay, this is advanced theodolite. Okay, the micro optic theodolite is also called as a optical theodolite. Okay. This is also called as a optical theodolite. Then second point, in this type of theodolite, optical micrometers are used for measurement of angle. Optical micrometer are used for measurement of angles. Then the various range of micro optic theodolites are available in the market, that is wild T1, T2, T3, T4 and T16. The micro-optic theodolite is a recent development in surveying instrument which gives the 1 second accuracy in measuring the angle. Okay, very accurate है, 1 second उसका least count है. Then this instrument is more suitable and durable for harsh environment and extreme weather condition, whether it is hot or cold. Okay. Then it has a automatic compensation of vertical circle index. Okay. Cause of this automatic circle
index, the work in the vertical angle measurement is speedily. Then it has 30 into bright and sharp telescope, okay, comparative 30 into bright sharp and bright and sharp telescope है. Then it gives a short focus distance of 0.7 meter, okay. Then it provides a clear and a bright display with backlight illumination and also provides the display for both sides, and it is simple user इंटरफेस वन बटन ऑपरेशन, ओके. ये फीचर्स है. बट अभी जो मार्केट में अवेलेबल है 1 सेकेंड माइक्रो ऑप्टिक थेडोलाइट, उसे बोलते हैं PMT 1000 इन 1100. कौन सा है? 1 PMT 1001. ये अभी जो रिसेंट 1 सेकेंड माइक्रो ऑप्टिक में जो थेडोलाइट है वो रिसेंटली अभी जो नया है मार्केट में वो PMT 1001 है. ये है is ideal for the variety of surveying tasks such as triangulation, then precise traversing also, and tunneling, etc. Then this instrument features is a high magnification analytical telescope for sharp high contrast image. Also the automatic vertical circle compensator improves the speeds up vertical angles measurement, okay. And wide variety of EDMI can be attached to PMT 1001, okay. So जो डिस्टेंस मेजरमेंट का है, जो EDM जो यूज़ है इसमें भी ये वाइड वैरायटी वाला हम लोग लगाते हैं. अभी इसके फीचर्स तो हम लोग ने देखे हैं कि जो अभी हम लोग ने देखे वो सेम फीचर्स है PMT 1001 के. अभी हम लोग देखते हैं इसके कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ 1 माइक्रो ऑप्टिक थेडोलाइट. 1 इज़ अ टेलीस्कोप, ओके. ओनली कंपोनेंट पार्ट्स है, उसके फंक्शंस आपको नहीं पूछे हैं, ओके. सो दिस इज़ अ टेलीस्कोप. देन मैग्निफिकेशन विथ स्टैंडर्ड आईपीस, ओके. देन दिस इज़ अ आईपीस. सो आईपीस से हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इमेज क्लियर करने के लिए आईपीस पे वहाँ पे राउंड सर्कल दिया रहता है, उसको घुमा के हम लोग बाइसेक्ट कर सकते हैं. देन लेवल ट्यूब फॉर सेंटरिंग. देन ऑटोमेटिक वर्टिकल and horizontal readings occur. Vertical, and this is horizontal, vertical circle and horizontal circle, okay. Then foot screws, ये जो है वो foot screws है. Then tri branch and tri-bed. This is a tri branch, और यहाँ पे देखो ये नीचे जो अरेंजमेंट है उसे ट्राई ब्रांच एंड ट्राइबिज बोलते हैं. एंड ट्राइपॉड टॉप, ओके. ये जो नीचे होगा वो ट्राइपॉड टॉप रहेगा. अभी हम लोग इमेज में देखते हैं ये जो है वो क्या है. फर्स्ट इनिशियल से देखते हैं, डायफ्राम इल्यूमिनेशन नॉब बोलते हैं उसे. ये जो क्या है माइक्रोमीटर और कोइंसाइडिंग नॉब है. देन ये फोकसिंग रिंग, ये हम लोग ने जैसे थेडोलाइट में यूज़ किया वैसे ही है, थोड़े बहुत कंपोनेंट्स उसके. ये वर्टिकल सर्कल है, ये टेलीस्कोप वर्टिकल क्लैंप है, क्लैंपिंग स्क्रू होते हैं वर्टिकल सर्कल के वर्टिकल के लिए, हॉरिजॉन्टल सर्कल के हॉरिजॉन्टल के लिए. देन आईपीस फॉर सर्कल रीडिंग माइक्रोमीटर, ओके, यहाँ पे भी है. देन वर्टिकल सर्कल टेंजेंट स्क्रू है, ओके. सो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल टेंजेंट स्क्रू. देन सर्कल सेटिंग नॉब एंड कवर, ओके. देन इलेक्ट्रिक लाइट सॉकेट, ओके. यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइट सॉकेट भी है बिकॉज ये डिजिटल है इसके लिए. देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ द वाइल्ड T1. अभी जो T1 अभी बहुत सारे टाइप्स है, बट हम लोग T1 का ओनली यूजेस देखते हैं कि यूजेस क्या है माइक्रो ऑप्टिक थेडोलाइट के. 1 इज़ अ ट्रैवर्सिंग एंड माइनर ट्रायंगुलेशन, ओके. ट्रैवर्सिंग और ट्रायंगुलेशन आपको पता है. देन ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग. देन सिविल इंजीनियरिंग सेटिंग आउट वर्क्स, इसमें आता है कर्व सेटिंग एंड ऑल.
then mining and tunneling works, then alignment measure in industries, also for the road, then tachometric survey, then field astronomy, then compass traversing, and it is preferred for all sorts of building site survey. Okay, these are the uses of wild T1 micro optic theodolite. Okay. Also, it is used for precise angular measurement for traversing or the large construction project work where the accuracy of second are desirable, such as the construction of tunnel and the bridges. Okay, ये सब uses है. अभी next देखते हैं हम लोग डिजिटल थेडोलाइट्स. ओके, अभी फर्स्ट हम लोग ने देखा वो कौन सा था, माइक्रो ऑप्टिक थेडोलाइट था. सो सेकेंड वन है थेडोलाइट में ही डिजिटल थेडोलाइट है. तो इसका शॉर्ट में इंट्रोडक्शन क्या है वो देखते हैं. फर्स्ट, दिस आर द प्रोवाइड विद द कंट्रोल पैनल विद द कीबोर्ड्स LCD. ओके, क्या है, कंट्रोल पैनल प्रोवाइड किया है, डिस्प्ले है LCD डिस्प्ले, एंड ये जो है वो कीज है. देन in this type of theodolite, the measurement of angle is done by dynamic system with optoelectronic scanning. अभी इसमें जो यूज़ होता है वो डायनामिक सिस्टम यूज़ होता है. Then various range of digital theodolite available in the market, that is Wild T1000, Wild T2000 and Wild T2000S etc. ओके, भी यहाँ पे भी टाइप है, जैसे प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा. ओके, देन दिस थेडोलाइट हैज़ एन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग सिस्टम विद पोजीशन कोडेड सर्कल. देन दिस इज नो टेम्पररी और द परमानेंट एडजस्टमेंट रिक्वायर फॉर दिस थेडोलाइट. ओके, थेडोलाइट अभी ये डिजिटल थेडोलाइट है, इसके लिए सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग, ये जो ऑपरेशंस है वो रिक्वायर नहीं होते. बट जब भी हम लोग टोटल स्टेशन यूज़ करते हैं ये तीनों ऑपरेशन करना नेसेसरी होता है. एंड इट इज़ फुल्ली कंपैटिबल एंड परफेक्टली मॉड्यूलर इंस्ट्रूमेंट. ये क्या है, फुल्ली कंपैटिबल एंड परफेक्टली मॉड्यूलर इंस्ट्रूमेंट है. सो कंपोनेंट पार्ट्स देखते हैं. सिमिलर कंपोनेंट पार्ट्स रह गए थोड़े बहुत थेडोलाइट जैसे. फर्स्ट है टू, अभी डायरेक्टली हम लोग डायग्राम्स में देखते हैं. यहाँ पे है ऑब्जेक्ट लेंस. ओके, ऑब्जेक्ट लेंस का यूज़ सबको पता है, और बाइसेक्ट करना. देन टारगेट साइड्स. ओके, ये स्क्रू है. देन ये अपर पार्ट है वो हैंडल स्क्रू, ये ऊपर है हैंडल. देन सेंटर मार्क एंड वर्टिकल प्लेट. अभी यहाँ पे एक बैटरी पैनल भी रहता है. ओके, और देन हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन, हॉरिजॉन्टल क्लैम्प स्क्रू, देन tabular vial, then LCD display, operation case, vertical vial or circular vial, then tripod, base plate. Okay, ये सब जो component parts है. Okay, then next है procedure for measurement of horizontal angle with digital theodolite. अभी हम लोग प्रोसीजर देखते हैं कि अगर हम लोग को हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल थेडोलाइट. टू फर्स्ट पॉइंट, टेकिंग आउट द डिजिटल थेडोलाइट फॉर बॉक्स एंड फिक्स इट ऑन अ ट्राइपॉड ओवर द रिक्वायर्ड स्टेशन. जो हम लोग सब कंपास में देन हम लोग ने लेवलिंग किया, तो हम लोग ने फर्स्ट क्या किया, सेंटरिंग पोर्शन किया. तो पहले तो हम लोग को जो स्टेशन हम लोग ने सिलेक्ट किया है वो स्टेशन पे हम लोग को ट्राइपॉड रखना है. देन अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग बाय लेग्स एडजस्टमेंट एंड सेंटरिंग बाय जजमेंट. ओके, अभी यहाँ पे रिक्वायर तो नहीं होता, बट जजमेंट से हम लोग को ट्राइपॉड रखना है और ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट है डिजिटल थेडोलाइट वो रखना है, और प्रॉपर एडजस्टमेंट से बाय अप्रॉक्सीमेट जजमेंट से हम लोग को सेंटरिंग करना है. Then leveling the digital theodolite using foot screws by using method. This is plate level, parallel or to pair foot screws and perpendicular positions. Okay, only foot screws से क्या करना है, हम लोग को सेंटर करना है, मतलब सेंटरिंग ये हम लोग को इसमें डिजिटल थेडोलाइट में करना है with the help of foot screws. Then fourth point is a focusing of the diaphragm and the object using eyepiece and focusing screw. Then switch on the digital theodolite.
6.1 सिलेक्ट लेफ्ट और राइट डायरेक्शन मोड बाय प्रेस बटन लेफ्ट और राइट। जो हम लोग को लेफ्ट राइट डायरेक्शन चाहिए, जस्ट वहाँ पे फंक्शन की है लेफ्ट और राइट, जस्ट क्लिक करना है। देन डायरेक्ट टेलीस्कोप टूवर्ड्स द इनिशियल ऑब्जेक्ट, बाइसेक्ट इट, clamp the theodolite using the horizontal clamp screw, then make accurate bisection by using slow motion screw। ओके, स्लो मोशन स्क्रू को हम tangent स्क्रू भी बोलते हैं। ओके, तो हॉरिजॉन्टल क्या करना है, जैसे ही हम लोग बाइसेक्ट करते हैं क्लैम्प करना है हॉरिजॉन्टल, एंड अगर परफेक्टली बाइसेक्शन नहीं हो रहा है तो जो स्लो मोशन स्क्रू है फॉर द हॉरिजॉन्टल रीडिंग के लिए, तो वो जस्ट हम लोग को क्या करना है, स्लो मोशन में घुमाना है ताकि इजीली बाइसेक्ट हो सके। देन प्रेस द बटन फॉर द जीरो रीडिंग, देन अनक्लैम्प द क्लैम्प स्क्रू एंड बाइसेक्ट द फाइनल ऑब्जेक्ट एंड क्लैम्प इट बाय द क्लैम्पिंग द क्लैम्प। ओके, सो क्या करना है हम लोग को, अगेन फॉर जीरो पे लाना है, जो फाइनल बाइसेक्शन वाला पॉइंट है, फाइनल जो ऑब्जेक्ट है उसको बाइसेक्ट करना है एंड क्लैम्प करना है, एंड देन रीडिंग को हम लोग को क्या करना है, नोट डाउन करना है। ये हुआ हम लोग का प्रोसीजर है अगर हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल थियोडोलाइट। देन यूजेस देखते हैं क्या है डिजिटल थियोडोलाइट के। It can be used for the angular measurement for calculating horizontal and vertical angles. Then it can be combined with wild distomat for measuring angle and distance. It can be connected to the GRE3 data terminal for automatic acquisitions, and it can be connected to the computer with R232 interface. Okay, GRE2 एक इंस्ट्रूमेंट है, टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं GRE3 टर्मिनल फॉर ऑटोमेटिक एक्विजिशंस के लिए, एंड ये कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं विथ R232 इंटरफेस। ओके, ना याद रखना है। तो आपको जस्ट यूजेस वगैरह पूछेंगे इसके डिजिटल थियोडोलाइट के, या प्रोसीजर पूछ सकते हैं, बट जो अभी हम लोग ने देखा है उसमें जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं वो पार्ट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जस्ट स्लाइडली डायग्राम निकाल के या आपको जस्ट लिस्ट डाउन करना है कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ डिजिटल थियोडोलाइट। ओके, अभी ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में हम लोग टोटल स्टेशन देखते हैं कि टोटल स्टेशन का इंट्रोडक्शन, देन उसके एडजस्टमेंट कैसे है, उसके फंक्शंस कीज क्या है, वो हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये जो 5th चैप्टर है 2 पार्ट्स में ही ख़त्म होगा, बिकॉज ओनली थियोरेटिकल पार्ट है इसमें। ओके, जस्ट आपको फंक्शंस, यूजेस, उसके प्रिंसिपल्स जस्ट इसमें आपको याद रखना है। थैंक यू एवरीवन। But if you have any doubt, just message me on our WhatsApp group so we can keep your doubt session. Okay, thank you everyone.